Good morning, students. All are there? Start your videos. Start your videos. Shruti is there. Yes. Ramchandra, Rishi. Yes, Rishi Bade is there. Ramchandra, are you there? Ramchandra, are you there, beta? Yes. Start Yes, your ma'am. video. Start your video. So, you must have seen all solved questions. Yes. Shruti, Ramchandra, Rishi. Yes, ma'am. Have you seen solved questions? Yes, ma'am. Any doubt in that? Yes, Any doubt? no, ma'am. Okay. So we'll start with today. Subsets. We'll start with the subsets. Subsets. Now we have seen student state. If A is set, then it is a collection of all well-defined objects. Yes or no? ठीक है. Suppose set A is having A, B, C, D, E. ठीक है. तो अभी सेट में ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है all are well defined. If I will take some elements from set A, if I have taken suppose A, B, C, A, B, C, and suppose I call it B. ठीक है. So what I have done, I have taken some elements from set A, B, C, और उसको मैंने नाम दे दिया B. If in collection B, in the collection B, if all elements are well defined, है ना, जो सेट की प्रॉपर्टी है सेम सबसेट की वही प्रॉपर्टी होने वाली है. In collection B, all elements are well defined, and for all elements in B, all elements in B should be there in set A. For all elements, suppose मैं इसको x बोलती हूँ. For all x belongs to B, x belongs to A. ये जो सारे x है, मतलब x यहाँ पे कौन होगा? A, B, C. If all elements are there in a set A, ठीक है ना, ऐसा एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कि जो B में है और A में नहीं है. तब हम ये जो कलेक्शन है B, उसको बोलते हैं B is a subset of A, and we are denoting it as B is a subset of A. बहुत बार सेट B A के इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि हम 2 less than 3 बोलते हैं, लेकिन अगर हमें 2 equal to 2 लिखना है, so we can write 2 is less equal to 2. Can we write it? Can we write for the element? Yes, ma'am. You know the inequality. Yes. Are you getting inequality? ठीक है. तो अगर 2 less equal to 2 लिख सकते हैं हम, मतलब I can write 2 less equal to 3 also. What it means? Either 2 is less than 3 or 2 will be equal to 3. ऐसा इसका मीनिंग है. लेकिन यहाँ पे 2 equal to 3 है क्या? नहीं है. No, तो ma'am. कौन सी कंडीशन ट्रू है? 2 is less than 3. Getting? Yes or no? Yes, ma'am. So I can write it B is a subset of A. समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि 2 less equal to 3. तो एक तो ये B का सबसेट, B जो है वो A का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा. नहीं तो फिर B A के इक्वल भी तो हो सकता है. एक तो लेस देन होगा और 2 इक्वल टू 3 हो सकता है. यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें सेट्स पता नहीं है तो हम लिख सकते हैं ना. Yes or no? Can we write it? Yes, Can ma'am. we write? Are you getting? So what is meant by subset? B is said to be a subset of set A if B have all properties of set A and all elements from set B belongs to set A. Yes or no? मतलब क्या है कि ये जो B सेट है ना, ये पूरा A में कंटेन. Set A is containing set B, means obviously set B will be the subset of it. Are you getting? Yes or no? Any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So write down definition of subsets.
a set A is said to be subset of, यहाँ पे अभी हमारा सेट और ये चेंज हो गया है. You can write set B is said to be a subset of A. Anything you can write. Notation important है, subset की notation जो है. Set B is a subset of A. Set B is a subset of A if every element of B, set B, a set B is said to be subset of A if every element of B is element of A. B A का सबसेट कब बोला जाएगा? जब B का हर एक एलिमेंट A का एलिमेंट होगा. That's it. Getting? Any doubt? ठीक है? No, ma'am. Okay. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? So we can write it B is a subset of A. B is a subset of A. If A belongs to B, which implies A belongs to A. ठीक है? So what it? If any element belongs to B and B is a subset of A, then what we have? That element will be belongs to A, means which implies B subset of A and any element belongs to B, both will imply A is belongs to A. Means small a, element small a will be belong to set A. Any doubt? Now see if you can see the screen. See here the statement. A is a subset of B and B is a subset of A. Now see student, if we have the situation where B is a subset of A, मतलब B जो है वो A का सबसेट है, और क्या बोल रहा है कि A भी B का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट, दोनों क्या है एक दूसरे के सबसेट से. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कब पॉसिबल होगा? जबकि दोनों इक्वल हो. ठीक है ना? If both are equal, then only we can write here both are the subsets of each other. For example, if for the numbers you can see here, suppose set A having one number 2 and set B having one number 3. Here I cannot take set A as a subset of B, है ना? यहाँ पे दोनों भी इक्वल नहीं है और एक एक एलिमेंट है यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करती हूँ, so here I can write B is a subset of A. Yes or no? Can I write here B is a subset of A? Yes or no? Yes, ma'am. है ना? ये Yes, आप लिख ma'am. सकते हो. लेकिन if I want to write here A is also a subset of B, but in A 2 element is there extra, so I have to add that 2 element in a B, then and then only I can write here A subset of B. Now see, for getting the situation, both the situations where A is a subset of B and B is a subset of A, we need A equals to B. Are you getting? Yes or no? So write down. Write down. If A is a subset of A, B, if A is a subset of B and B is a subset of A. If A is subset of B and B is subset of A, then we must have A equals to B. Then we must have A equals to B. Got it? Yes, ma'am. ठीक है? तो
अभी एग्जाम्पल बताओ, चलो आप बताओ एग्जाम्पल, कैसे कैसे एग्जाम्पल, सेट और सबसेट बताओ मुझे। ये श्रुति। सेट्स और सबसेट्स एग्जाम्पल बताओ ना। सेट्स Ma'am, set of natural number and set of integers or real number. कौन सा सेट होगा और कौन सा सबसेट होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर, कौन सेट है कौन सबसेट है? सपोज मैं, Ma'am, natural number set है हाँ और integer सबसेट है। कैसे क्या श्रुति? इंटीजर्स में निगेटिव भी तो है बेटा। हाँ। ऐसा होगा ना? गेट इट? n के साथ z लिया तो ऐसा ही रहेगा, n के साथ में, ये अभी पढ़ाने वाली थी। n is a subset of real numbers also, z is subset of real numbers, है ना? Are you getting? ठीक है। So now after that a subset of b and b subset of a you have written, then a must equals to b। तो उसके बाद लिखो subsets of real numbers, subsets of real numbers। Next is subsets of real numbers। ठीक है। We know set of R is a set of real numbers, then set of natural numbers starts from 1 2 3, set of integers dot 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। then कौन सा है? n हो गया, z हो गया। सेट ऑफ होल नंबर्स भी तो है, होल नंबर्स में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सब एक जैसे ही है, नेचुरल नंबर के जैसा, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेट ऑफ रैशनल्स a by b फॉर्म, where a b belongs to set of integer and b non zero, है ना? ठीक है। these all are the subsets of real numbers, ठीक है। रैशनल ले लिया भाई, इरेशनल भी तो लेना पड़ेगा, उसने क्या बिगाड़ दिया हमारा, ठीक है ना? इरेशनल को ना t से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ इरेशनल। तो अब मुझे बताओ ये जो है n z होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, वो कैसे लिखेंगे हम लोग? सपोज सबसे छोटा वाला सेट कौन सा है? छोटा वाला मतलब ये भी बहुत इनफाइनाइट ही है, छोटा नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस n is the subset of whole numbers, can I write Ramchandra? Can I write n is subset of whole numbers? Yes, ma'am. है ना? We can write n is subset of whole numbers, then whole number will be subset of, whole numbers will be subset of Integers. integers। Yes, whole numbers we can take as a subset of integers, ठीक है। These whole numbers are subset of integers। उसके बाद integers कहाँ जाएंगे? integers कहाँ जाएंगे? रियल नंबर, डायरेक्ट रियल नंबर, उसके बीच भी तो एक आता है ना सेट, कौन है? रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, Rational number. रैशनल नंबर्स। एंड रैशनल नंबर कहाँ जाएगा? रियल Real नंबर्स, number. ठीक है। तो अभी ये जो है ना, अगर रियल नंबर के मैंने दो पार्ट कर दिए, एक रैशनल और एक उसका कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं हम इरेशनल, ठीक है। उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, याद रखो कैपिटल टी से। तो अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर है पूरा, तो आधा हिस्सा जो है वो रैशनल नंबर का है और आधा हिस्सा जो है वो इरेशनल नंबर का है। अभी आपने अगर यहाँ पे ये लिंक, ये जो है, ये अगर आपने देखा तो n देन सेट ऑफ होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर, ठीक है। और ये जो इरेशनल है वो रैशनल, रियल नंबर में से रैशनल नंबर अगर आपने हटा दिए तो जो भी बचते हैं वो इरेशनल नंबर में जाते हैं, बराबर। लेकिन ये रैशनल की टीम में तो इतने सारे हैं, n है, w है, z है,
तो मुझे बताओ, अगर ये सब रैशनल की टीम में है तो वो इरेशनल की तरफ जाएंगे क्या? जाएंगे। तो कैन आई राइट NWZ सबसेट ऑफ T? कैन आई राइट इट? Yes, ma'am. अरे भाई, ये जो नंबर है वो अगर रैशनल के सबसेट से NWZ, तो वो इरेशनल में जाएंगे क्या? आई कैनॉट राइट नो, these all are not the subsets of irrational numbers. समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर वो रैशनल है तो वो इरेशनल कैसे होगा? हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज 1, है ना? इसका हर एक नंबर, अब यहाँ पे n 5 लिखो, 5/1 हो गया रैशनल होल नंबर से। 0 ले लो, क्यों डरते 0 से? डिवाइड बाय 1 हो गया इरेशनल, और इसके तो सारे नंबर्स को डिवाइड बाय 1 करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये सारे नंबर्स रैशनल है तो ये बिल्कुल भी इरेशनल के टीम में नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। सो हियर वी हैव Q is a subset of R, T is a subset of R. What is T? Set of irrational numbers. ठीक है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, तो इसके जो सबसेट्स है तो वो T के सबसेट्स कभी नहीं होने वाले। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो M is not a subset of T, W is not a subset of T, then Z is not a subset of T, और Q तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, both are the complements of each other. Are you getting now? ठीक है, तो रियल नंबर्स के सबसेट्स कौन से हो गए अभी? सेट ऑफ रियल नंबर्स के ये जो स्टैंडर्ड सेट्स हमने देखे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलो राइट डाउन देन। हैव यू रिटन इट? Subsets of real numbers you can write. Subsets of real numbers. If you can see the screen, please tell me. देखो यहाँ पे है Yes, ma'am, we sets of can. real numbers. ठीक है, एक मिनट। Yes, it is there. है ना, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये 1.61 दिया है, देखो 6.1। ठीक है, so we have R as a set of real numbers, and in that set of natural numbers, set of integers, set of rational numbers, all are subsets of real numbers. Yes or no? अब Yes, मुझे ma'am. ये एक क्वेश्चन किसने नहीं पूछा, अगर भी हम इसको बोलते हैं B को इसका सबसेट है, सबसेट ऑफ A, तो A को तो ये सेट A को भी तो कुछ नाम होगा, ये इसका सबसेट है, मतलब एक सेट उसका एक सबसेट, मतलब वो उससे छोटा। ठीक है, तो जिसका सबसेट है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं Superset. सुपरसेट। सुपरसेट और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस है ना, आई टेल दैट डिफरेंस। ठीक है, सुपरसेट यूनिवर्सल सेट नहीं होता है ना। एक पर्टिकुलर एग्जांपल उसमें अगर सिर्फ यूनिवर्सल सेट है और एक ही सेट दिया है उसका, तो इन दैट केस वी कैन टेक यूनिवर्सल सेट एज अ सुपरसेट ऑफ दैट गिवन सेट। ओके, completed with the subsets of set of real numbers. See here they have given. Yes. If you can see the screen, just a minute. देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने n सबसेट ऑफ z, दिख रहा है ना आपको? ये
ठीक है, yes or no? Shruti, Rishi, Ramchandra, are you able to see the screen? Yes, ma'am. So n is Yes, subset of ma'am. z is subset of q, q is subset of real numbers, and t, what is t? It is a set of irrational number, it is subset of r, but n is not a subset of t, means natural number irrational number कभी नहीं हो सकते। irrational में कौन जाता है? irrational में कौन जाता है? √2, √3, 5, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? irrational numbers, ठीक है, Irrational. ठीक है। और ये भी एक बार लिख दो आप, Yes, ma'am. if B is a subset of A, then A will be the superset and B will be the subset of A. Getting? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Completed with this? Completed? ठीक है। Next is intervals are subsets of R. This is very important topic. ये अगर समझ में आया तो आप अभी आपकी जो 11th-12th की जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो इसमें अगर आपको इंटरवल समझ में आ गए तो आप सही ऑप्शन चुन सकते हो। मीन्स अगर इंटरवल्स ही नहीं समझ में आया तो आपको फंक्शन चैप्टर नहीं समझेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझेगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इंटरवल समझ में आ जाए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज intervals as subsets of R, that is set of real numbers. चलो, आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर किया लास्ट ईयर 10th में, बराबर। तो आपको जो ट्रायंगल था, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है मेरे मुंह में, जो ट्रायंगल था तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना था आपको, बराबर। तो आपको साइड दिए जाते थे 5 सेंटीमीटर, तो आप कैसे ड्रॉ करते थे? स्केल लेके 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वो जो है वो रियल नंबर लाइन पे जो भी मेजरमेंट है वो कहाँ पे है? वो रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। तो जो रियल नंबर लाइन है आर, उसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। हम मेजर नहीं कर पाएंगे ना, इनफाइनाइट है, मींस इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। स्ट्रेट दिख रही ना? हाँ, यस, नाउ इट इज स्ट्रेट। ये जीरो न्यूट्रल पॉइंट अपना, ये है पॉजिटिव इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। भाई इंफिनिटी इंफिनिटी होती है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, ओके। ये रियल नंबर लाइन है। अभी मतलब ये जो आर है ना, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई ब्रैकेट समझा के देने हैं उसके बाद में बोलती हूँ आपको इसको कैसे लिखा जा सकता है। चलो, तो इंटरवल्स के 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है। एक है फर्स्ट वन क्लोज्ड, ठीक है। एक पैलेस है जिसका एंट्रेंस वाला दरवाजा और पीछे वाला दरवाजा दोनों भी बंद है, हम जा नहीं सकते इसके बाहर, ठीक है। आर यू गेटिंग? दोनों भी क्लोज्ड है, दोनों भी क्लोज्ड। सेकेंड वन, दोनों भी ओपन है, यू कैन गो देयर, तो पीछे के दरवाजे से आप निकल सकते हो, दोनों साइड से ओपन है, कहीं से भी एंट्री करो, कहीं से भी निकल जाओ, ठीक है। सेकेंड, बोथ ओपन। थर्ड वन, यहाँ पे लिखती हूँ, थर्ड वन, एक क्लोज्ड है और एक ओपन है, और फोर्थ वाला है एक ओपन है, ये क्लोज। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये यहाँ से तो क्लोज है, लेकिन अगर आगे गए तो वो ओपन है, तो उसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड। और यहाँ से ओपन लेकिन आगे जाने के बाद वो बंद हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेमी ओपन। आर यू एबल टू सी द डायग्राम? सॉरी, दैट सेमी ओपन। नाउ इज इट विजिबल? यस और नो? ठीक है, इसको बोलेंगे Yes, ma'am. सेमी ओपन।
अभी देखो क्लोज्ड मतलब क्या, चलो इसमें हम अभी नंबर्स डाल देते हैं, एक कोई भी वैल्यूज है ए बी, ये कोई भी रियल नंबर्स है ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन एक है कि ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, है ना। अगर मुझे कोई भी दो नंबर्स लें तो उसको तो कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर दोनों इक्वल ले लिए तो इंटरवल मतलब एक पॉइंट हो जाएगा ना, दोनों एक ही ले लिया, ए कॉमा ए ले लिया, तो इंटरवल कुछ तो भी लेंथ ही नहीं आएगी, उसकी जो भी लेंथ आएगी वो जीरो आएगी, मतलब एक ही पॉइंट मिलेगा आपको रियल नंबर लाइन पे, समझ में आ रहा है। उसमें हमें गैप चाहिए ना कुछ तो भी, ठीक है। तो अभी मैंने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, ए इज लेस देन बी, हर एक इंटरवल में डालती हूँ अभी सेम ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ठीक है। तो अभी क्लोज इंटरवल मतलब क्या, अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, क्लोज इंटरवल मतलब क्या। मैम मतलब ए और बी दोनों आएंगे और उसके बीच में के नंबर यस यस यस, सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विल कंटेन दोज एक्स, ऐसा सेट है ये, ऐसे एक्स कंसिडर किए जाएंगे कि जो a लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, और ये जो x ले रहे हैं हम लोग ये सेट ऑफ रियल में से ही है, ठीक है। ये ऐसा सेट बनेगा जिसमें a और b दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, द नंबर्स विच आर इक्वल टू a मींस a विल बी देयर, इक्वल साइन है, इक्वल साइन इंडिकेट्स दिस क्लोज ब्रैकेट, आर यू गेटिंग। अगर इक्वल साइन है मतलब क्लोज ब्रैकेट, मतलब वो नंबर भी लेना है आपको। अगर मेरे पास इंटरवल है 1,2 क्लोज इंटरवल, तो उस इंटरवल में अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में उसको लिख रही हूँ तो उसमें 1 और 2 तो श्योर आएंगे, बराबर। और उसके साथ कौन से नंबर आने वाले हैं, ऐसे नंबर्स की जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, मतलब सारे ही सारे आने वाले हैं, मतलब ये दोनों भी ए और बी भी और इसके बीच का जो है वो भी पार्ट आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको, यस और नो, गॉट इट। यस मैम। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, एक बार मैं आपको ठीक से लिख के देती हूँ। सो क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट close bracket a comma b where you write the condition a is less than b and ab belongs to r, ठीक है। it is a set of x such that x is any real number and a less equal x less equal b, ठीक है, got it। मतलब अगर रियल नंबर लाइन ड्रॉ करो आप, माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी हो गया, तो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, अगर दोनों हम इंक्लूड कर रहे हैं ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल में, ठीक है, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, समझ में आ रहा है, यस और नो, गॉट इट। नाउ सेकंड वन, क्या डिफरेंस होगा सेकंड और फर्स्ट में, यस रामचंद्र, व्हाट इज द डिफरेंस। अगर ओपन है, ओपन है, ओपन है मतलब हम वो पॉइंट्स नहीं लेने वाले, ठीक है, तो क्या आएगा ये सेकंड ओपन ब्रैकेट ए बी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन एक्स लेस देन बी, समझ में आ रहा है, यस और नो, यस मैम। बहुत बार ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब जो क्लोज ब्रैकेट है ना उसको उल्टा करके, मतलब ऐसे ऐसे भी लिखते हैं बहुत बार, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाउ यू कैन राइट द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज अ सेट, कैसे लिख सकते हो, एक एंड तो माइनस इंफिनिटी और एक एंड तो प्लस इंफिनिटी है, बराबर, कैसे करोगे इसको, ओपन, बोथ ओपन, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, इंफिनिटी जो है हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, हमें पता नहीं है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कैन आई राइट यस
minus to plus infinity. So we can show the set of real numbers as an open set, है ना? Open at both the ends, minus infinity to plus infinity. Got it? Any doubt? No, ma'am. ठीक है. So got it now? Subsets, superset and intervals as a subsets of real numbers. Are you getting? ठीक है. तो पावर सेट जो है मुझे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना है. So tomorrow we'll take it in the next lecture. Okay? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.